السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TGSRTC نے ریاست بھر کے مختلف زونز میں ٹریفک اور میکینیکل سپروائزر ٹرینی کی خالی ملازمتوں کو پُر کرنے آن لائن درخواستوں کا عمل شروع کر دیا۔ اہل اور دلچسپی رکھنے والے امیدوار کارپوریشن کی ویب سائٹ پر جا کر درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے تحت جملہ 198 عہدوں پر تقرر کیا جائے گا۔ ٹریفک سپروائزر ٹرینی کی 84 ملازمتیں اور میکینیکل سپروائزر ٹرینی کی 114 ملازمتیں ہیں۔ امیدوار کے پاس متعلقہ شعبے میں ڈگری یا ڈپلومہ ہونا ضروری ہے۔ 1 جولائی 2025 تک امیدوار کی عمر 18 سال سے 25 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ SC ST اور EWS امیدواروں کے لیے 5 سال جبکہ ESM امیدواروں کے لیے 3 سال کی رعایت دی گئی ہے۔ SSC سرٹیفکیٹ، تاریخ پیدائش کے ثبوت کے لیے پہلی سے 7ویں جماعت تک کا اسٹڈی سرٹیفکیٹ یا رہائشی سرٹیفکیٹ MRO کی جانب سے جاری کردہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی حکومت تلنگانہ کا تازہ ترین کمیونٹی سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہوگا۔ BC امیدواروں کے لیے نان کریمی لیئر سرٹیفکیٹ اور EWS سرٹیفکیٹ 1 اپریل 2025 کے بعد جاری کردہ ہونا ضروری۔ درخواست کی آخری تاریخ 20 جنوری۔ فیس جنرل امیدواروں کے لیے 800 روپے جبکہ SC اور ST امیدواروں کے لیے 400 روپے۔ منتخب امیدواروں کو ماہانہ 27,080 سے 81,400 روپے تک تنخواہ دی جائے گی۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی نے ایک اہم اور رس فیصلہ کرتے ہوئے مقامی بلدیاتی انتخابات میں 2 بچوں کی شرط کو ختم کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا۔ اس فیصلے کو ریاست کی آبادی پالیسی اور بلدیاتی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا۔ اسمبلی میں تلنگانہ پنچایت راج ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا، جسے وزیر پنچایت راج دانا سری انوسویا سیتکا نے ایوان میں پیش کیا۔ اس بل کے تحت اب 2 سے زائد بچوں والے افراد کو مقامی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل نہیں سمجھا جائے گا۔ وزیر پنچایت راج نے ایوان کو بتایا کہ 2 بچوں کی شرط 1994 میں آبادی پر قابو پانے کے مقصد سے نافذ کی گئی تھی، تاکہ 1980 اور 1990 کی دہائی میں آبادی میں تیزی سے اضافے کے باعث پیدا ہونے والے مسائل جیسے غذائی قلت، بے روزگاری اور غربت سے نمٹا جا سکے۔ تاہم حکومت نے 30 برس بعد آبادی پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا ہے۔ سیتکا کے مطابق تلنگانہ کے دیہی علاقوں میں زرخیزی کی شرح اس وقت 1.7 ہے، جبکہ آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری شرح سے کم ہے۔ اگر یہ شرح اسی طرح سطح پر برقرار رہی تو مستقبل میں یہ صورتحال ریاست کی آبادی اور سماجی ڈھانچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آنے والی نسلوں کے طویل مدتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے زرخیزی کی شرح کو 2.1 یعنی کہ ریپلیسمنٹ ریٹ تک پہنچانا ضروری سمجھتی ہے۔ موجودہ حالات میں شہری کم بچے پیدا کر رہے، جس کے نتیجے میں آبادی میں تیزی سے کمی اور اس سے جڑے کئی ناپسندیدہ سماجی و معاشی اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر فائنانس ملو بھرتی وکرمارکا نے اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران ایک اہم اطلاع فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت گرہ جیوتی اسکیم کے تحت 25 لاکھ سے زائد خاندانوں کو مفت بجلی فراہم کر رہی۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ہر اہل خاندان کو ماہانہ 200 یونٹ تک مفت بجلی دی جا رہی، جس کے بلوں کی مکمل ادائیگی حکومت خود کر رہی۔ بھرتی وکرمارکا نے ایوان کو مطلع کیا کہ اس فلاحی اقدام کو یقینی بنانے کے لیے اب تک سرکاری خزانے سے 3,593 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ یہ اقدام عام شہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے اور بنیادی خدمات کی آسان رسائی کو یقینی بنانے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس بیان کے ذریعے حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کی اپنی ضمانتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے۔
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट और उसके इतराफ के इलाकों में सुबह घनी कोहर देखी गई, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। कोहर की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली अहम शाहराहों पर रोशनी कम थी, जिसके बाइस गाड़ी चलाने वालों को मजबूरन दिन के वक्त भी हेडलाइट्स खोलकर इंतहाई सुस्त रफ्तारी से सफर करना पड़ा। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और मुसाफिरों की सहूलत के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें एयरपोर्ट पर तवील इंतजार के दौरान ज्यादा परेशानी ना हो। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो घर से निकलने से पहले अपनी परवाज़ों का ताज़ा तरीन स्टेटस चेक कर लें। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के दबाव को कम करने रियासती हुकूमत ने शहर के क़ल्ब में वाक़े केबीआर पार्क के तरफ फ्लाई ओवर्स और अंडरपास की तामीर का बड़ा फैसला किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल की। इस मंसूबे का मकसद शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाना और शहरियों को ज़हनी अजियत से निजात दिलाना। केबीआर पार्क के तरफ ट्रैफिक के संकीर्ण मसाइल को देखते हुए हुकूमत ने यहाँ 2 मरहलों में फ्लाई ओवर्स और अंडरपासेस तामीर करने का मंसूबा बनाया, जिसे 2 साल के अंदर मुकम्मल करने का निशाना रखा गया। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी की जांच का काम शुरू कर दिया गया। टीडीपी ऑफिस से एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट तक मिट्टी के नमूने लिए जा रहे। दिलचस्प बात यह है कि इससे कबल 2017 में मिट्टी की जांच हुई थी और अब 8 साल बाद दोबारा ये अमल मुकम्मल किया जा रहा। हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम में पुलिस ने संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र शहरियों को चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और खरीद व फरोख्त से मुतल्लिक़ सख्त इंतबाह जारी किया। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंसानी जानों, परिंदों और जानवरों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। मेहदीपट्टनम पुलिस के मुताबिक चाइनीज मांझा धात और केमिकल से तैयार किया जाता है, जो मोटरसाइकिल सवारों, बच्चों और राहगीरों के लिए जानलेवा हादसात का सबब बन सकता है। हर साल संक्रांति के मौके पर इस मांझे के इस्तेमाल से गर्दन कटने, शदीद जख्मी होने और परिंदों की हलाकत के वाकयात सामने आते हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो सिर्फ रिवायती सूती कॉटन मांझे का इस्तेमाल करें और किसी भी सूरत में चाइनीज मांझा ना खरीदें। इसके साथ ही वालिदैन को भी हिदायत दी गई कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से रोकें। मेहदीपट्टनम पुलिस ने चाइनीज मांझे की फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्तलिफ मुकामात पर दुकानों और गोदामों की जाँच की जा रही और गैर कानूनी मांझा जब्त किया जा रहा। पुलिस ने खबरदार किया कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मुकदमात दर्ज करना और गिरफ्तारी भी शामिल है। इस मौके पर मेहदीपट्टनम पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि संक्रांति ये खुशियों का त्यौहार है, मगर चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से ये खुशियां गम में बदल सकती हैं। अवाम से गुजारिश की गई है कि वो कानून की पाबंदी करें, अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करें और किसी भी गैर कानूनी मांझे की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे। कानून तोड़ने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं चाइनीज मांझा फरोख्त होता हुआ नजर आए तो करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। यूटिलाइज करना है, नहीं होना है। रिसेंट भी कल टपचबुत्र में भी 245 का बॉबिन्स सीज किया है, 252 करेक्ट, और उससे पहले कुलसुमपुर में भी 345 का पूरा डंप सीज किया है। सबका ये सब केसेस में पूरा नॉन बेल। मरकजी हुकूमत की जानिब से मनरेगा की जगह नया कानून वीबीजी रामजी ने पर जारी हंगामे के दौरान तेलंगाना असम्बली ने बड़ा कदम उठाते हुए एक करारदाद मंजूर की, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा को जों के त्यों जारी रखने का मुतालबा किया गया। इसके साथ ही हाल ही में मंजूर किए गए विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन देही एक्ट वीबीजी रामजी जी को गरीबों के हुकूक के लिए नुकसानदा करार दिया। ख्याल है कि तेलंगाना दूसरी रियासत जिसकी असम्बली ने नए कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की। इससे पहले पंजाब असम्बली में भी इसी नौयत की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में करारदाद पेश की, जिसे सूती वोट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। करारदाद के मुताबिक नया कानून गरीबों के हुकूक, ख़वातीन मजदूरों के हुकूक के खिलाफ और वफाकियत की रूह की खिलाफ वर्जी करता है। करारदाद में कहा गया कि मनरेगा को 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत ने देही गरीबों के रोजगार और गरीब खानदानों को मौशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नाफिज किया था। మీ ముందు ప్రస్తావించడం జరిగింది అధ్యక్ష. సభానాయకుడిగా ఈ సభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వస్తున్న చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న
అనే సమాచారాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సభా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్న అధ్యక్ష. हैदराबाद शहर के चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मुस्लिम मैटरनिटी अस्पताल के करीब पेश आए एक वाक़े में मोहम्मद सलमान नामी नौजवान की जानिब से हंगामाराई की गई थी। वाक़े के दौरान नौजवान ने दावा किया था कि वो एक रॉडी शीटर है, जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही चादरघाट पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई के बाद मोहम्मद सलमान की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें उसने अपने साबिक़ा बयान से रुजू करते हुए कहा है कि वो रॉडी शीटर नहीं है। वीडियो पैगाम में मोहम्मद सलमान ने कहा, मैं रॉडी शीटर नहीं हूँ, मुझसे जज्बात में आकर गलती हो गई थी, मैंने जो कुछ कहा वो दुरुस्त नहीं था। उसने मजीद कहा कि इसका किसी भी तरह के मुजरिमाना पस मंजर से कोई ताल्लुक नहीं और वो अपने अमल पर नादिम है। मोहम्मद सलमान ने पुलिस और आवाम से मौजरत भी की और अपील की कि इस मामले को गलत रंग ना दिया जाए। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल जाँच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करे और अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। पुलिस का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने या खुद को मुजरिम जाहिर करके खौफ व हिरास फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश पाई जा रही। सर्दी का ये असर न सिर्फ देही अजला बल्कि दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी नुमाया तौर पर देखा जा रहा। शहर में गुज़िश्ता कई सालों के मुकाबले में इस मरतबा रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हो रही। खासतौर पर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े में रोज़ाना सुबह के वक्त घनी कोहर छाई रहती है। इस खतरनाक कोहर की वजह से आउटर रिंग रोड और दीगर शाहराहों पर रोशनी इंतहाई कम हो गई, जिसके बाइस हुकाम ने गाड़ी चलाने वालों को मोहतात रहने की हिदायत की। कई मुकामात पर सुबह 9 बजे के बाद भी सूरत हाल ऐसी रहती है कि सड़क पर आगे चलने वाली गाड़ियाँ नजर नहीं आती। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो सर्दी से बचाव के लिए जरूरी इक़दाम करें, खासतौर पर ज़ईफ़ अफराद और बच्चों का ख्याल रखें। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफस नामी बीमारी तेजी से फैल रही, जिसने अवाम में खौफ हिरास पैदा कर दिया। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में इस बीमारी की वजह से अब तक 22 अफराद की मौत हो चुकी है। हालिया वाक़यात में 23 दिसंबर को बाबटला और काकीनाडा में एक शख्स की मौत हो गई थी। मुल्क भर में स्क्रब टाइफस के मामलात के लिहाज से आंध्र प्रदेश 12वें नंबर पर है, जहाँ अब तक तकरीबन 2000 मुस्बित मामलात रिपोर्ट हुए हैं। रियासत भर में जिले चित्तौड़ सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बनकर उभरा है, जहां इस साल रिकॉर्ड 491 मामला दर्ज किए गए हैं। इस फहरिस्त में काकीनाडा 1998 मामला के साथ दूसरे और विशाखापट्टनम 158 मामला के साथ तीसरे नंबर पर है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अगर स्क्रैब टाइफस की बरवक्त तशखीस हो जाए तो ये एक आम बुखार की तरह ठीक हो सकता है, लेकिन लोग इब्तदाई तौर पर इसे मामूली बुखार समझकर आम अद्वियात लेते हैं और जब हालत बिगड़ जाती है तो अस्पताल का रुख करते हैं, जो जानलेवा साबित हो रहा। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये बीमारी गंदगी और सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से फैल रही। अगरचे ये बुखार पिछले 40 सालों से मौजूद, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में इसकी शिद्दत में इजाफा देखा गया। तशवीशनाक बात यह है कि दीगर रियासतों के मुकाबले में आंध्र प्रदेश में अमवात की शरह ज्यादा है। इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए एपी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो बैक्टीरिया की अक़साम की शनाख्त और गहराई से मुताले के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाएगी। कांग्रेस ने मनरेगा बचाने की मुहिम के आगाज का ऐलान करते हुए नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश और जनरल सेक्रेटरी तंजीम के केसी वेणुगोपाल ने मरकजी हुकूमत के नए कानून पर सख्त एतराज़ात उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि नया कानून देही हिंदुस्तान के मुफादात के खिलाफ और इससे मनरेगा के तहत हासिल रोजगार का कानूनी हक खत्म हो जाता है, जबकि केसी वेणुगोपाल ने इल्जाम लगाया कि यह कानून मनरेगा जैसे मांग पर मबनी प्रोग्राम को खत्म करने की मुनज़्ज़म कोशिश जो करोड़ों देही खानदानों के लिए सहारा रहा। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि मनरेगा बचाओ मुहिम नहीं बल्कि मनरेगा बचाओ संग्राम जद्दोजहद है, जिसका मकसद देही रोजगार के कानूनी और आईनी हक को बचाना। उन्होंने कहा है कि ये संग्राम 8 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा और इसकी नौयत दिल्ली तक महदूद नहीं होगी, बल्कि पंचायत, ब्लॉक, जिले और रियासती सतह पर मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ेंगी। Erasing his names reflect an attempt to erase the right-based vision behind Manrega itself. Why the Congress launched the Manrega Bachao Sangram? To defend the right to work, protect
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के हवाले से एक बार फिर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ हमारे मुल्क के लिए इंतहाई फायदेमंद इक़दाम, क्योंकि इससे हमारी कौमी सलामती और खुशहाली को इतना फायदा पहुंचा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी सदर का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे साथ गैर मुनसिफाना सलूक करने वाले ममालिक पर महसूलात आयद करने की अहलियत से महरूम होना अमेरिका के लिए एक जबरदस्त धचका होगा। ट्रंप इन ममालिक का हवाला दे रहे थे जो अमेरिकी बरामदात पर महसूलात आयद करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से आयद करदा बाहमी महसूलात से मुतल्लिक एक केस की समाअत कर रही। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द ही फैसला जारी करेगी। अदालत इस बारे में फैसला करेगी कि आया सदर को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगाने का इख्तियार है। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स दोनों ने इन टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किए गए हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए उसे तशद्दुद और दहशतगर्दी को उकसाने के मुतरादिफ करार दिया। ईरानी वजारत खारिजा ने एक बाज़ाब्ता बयान में कहा कि ट्रंप का मौक़िफ़ ईरान के दाखिली मामलात में एक खुली मदाखलत और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। वजारत खारिजा के बयान में कहा गया कि अमेरिकी सदर का ये गैर जिम्मेदाराना व ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव पर मबनी पॉलिसियों का तसलसल बयान के मुताबिक इस तरह के बयानात न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों के मनाफी बल्कि ईरानी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और दहशतगर्दी को हवा देने के मुतरादिफ भी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।